आपको सीरियल जादू है जिन्न का कि विक्रम सिंह याद है? विक्रम सिंह चौहान, वेल गेस व्हाट, अब वो बन गए हैं 36। नहीं उम्र नहीं बता रही हूँ, बट 36 बन गए, नाम ही 36 है। अब क्यों है ये तो उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि OTT पे वो नजर आ रहे हैं 36 और मैना की कहानी में आएंगे नजर। तो चलिए, शादी के बाद पहली इनसे है मुलाकात, पूछे तो सही कि ये 36 का आंकड़ा कैसे बिठाया इन्होंने। Welcome all to SBS Originals. I'm Megha from ABP News, and firstly, congratulations for 36 और मैना. It has received very good reviews and a lot of appreciation from the viewers. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था जब ये वेब सीरीज बन रही थी तब? Who wants to answer? Who's this question? Anyone can answer. It's you all were a part of the web series, तो आपको इतना ही knowledge होगा कि you know. So जब हम ये शो बना रहे थे, तो मुझे याद है एक बार मेरी विक्रम से बात हुई थी और कोई हम सीन करके हटे थे और विक्रम ने कहा था मैम आज मजा आया काम करके। तो मैंने ऐसी बातों में बोला देखो विक्रम, हिट या फ्लॉप तो हमारे हाथ में है नहीं, एक अच्छा शो बनाना हमारे हाथ में है। तो दिल से काम कर रहे हैं और अच्छे से बना रहे हैं। तो ये हमने नहीं सोचा था, मतलब मैंने तो पर्सनली नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, पर मुझे ये ज़रूर पता था कि कोई भी अगर ये शो देखेगा तो एक मुस्कान होगी चेहरे पे, एंड यू नो देयर बी अ स्माइल ऑन द फेस एंड दे विल एंजॉय। अब यू नो वेदर इट इज गेटिंग द नंबर्स और नॉट गेटिंग द नंबर्स, वो अब you know it is not in our hands, but making a good show is in our hands. तो हम सबकी कोशिश यही रही थी कि हम एक अच्छा शो बनाएं। संदीपा, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कैरेक्टर, यू लव डांसिंग एंड आपके कैरेक्टर में भी उसकी एक झलक देखने मिली जहां पर आप एक डांसर के रूप में दिखाई दे रही हैं। मैं ये पूछना चाहती थी, was it because you are used to dancing, was it challenging या फिर वो किस तरीके से आपने अपने रोल को अपनाया? Playing a dancer is not the challenging bit, but what you're doing as a character is actually the challenging bit. Also, I feel like one thing that I wanted to bring to Maina was a certain amount of grace for Nachanyas, in the sense that I feel like Nachanyas are not looked at in a nice way, and I felt I needed to bring a certain amount of respect to the art form of Nachanyas. So I personally did work that on how to bring a certain amount of grace to the way Maina is portrayed through the series. That is what I was very mindful of that, and that's a discussion that Shraddha and I also had initially when we sat down to discuss how to go about and what Maina should be like. So I did my research on how Nachanyas are, and already there are certain films that have been made projecting them a particular way, and I also wanted to make sure that I do it differently from what has already been portrayed, right? So that is something that I was mindful of. I made sure that I brought something of myself into Maina and into 36 and Maina. It was difficult. It's been a very hectic shoot because we also shot through pandemic, so we had lesser number of days to work on. It's a dance-based kind of show, so there are 5 songs. So you take about 2 to 3 days to shoot one song. Here we had like 8 hours to shoot one song. So it was physically extremely taxing. I had 2 days to learn 5 choreographies, and in that I was learning 2 completely new dance forms. I mean, I have never done belly dancing in my life. I've not done Kathak. These 2 things are completely diametrically different, firstly, and these are things that you require time to train, and you need to learn technicalities, all of that. But I had like a couple of hours to learn all of that. So बहुत hectic था. Even the shoot, because Shraddha was also under pressure to finish the shoot in a particular number of days, because it had to go on air as well. So there were a lot of things that everybody was kind of racing against time in this one. So yes, it was difficult,
but I feel like we had a fantastic script, in hand. I feel like the writing of Pankaj and Ashutosh was fantastic, and I think that's one of the reasons why all three of us are part of this project, because we all believed and loved the written material so much. And we just wanted to give it our best, irrespective of कितने घंटे नाचे हैं, कितना हमने वो सब आप सब भूल जाते हो जब आप end product देखते हो, then because then you feel it's all worth it. विक्रम, आपसे पूछना चाहूंगी, how was it difficult? You play a good boy in the show. I just wanted to know how did you relate with the character, and आपको मुझे नहीं लगता ज्यादा उतनी मेहनत करनी पड़ी होगी कैरेक्टर को लेकर, because yeah, we all know you're in nature भी आप वैसे ही अच्छे आपकी बातें होती रहती है इंडस्ट्री में भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ. So one thing, as you said that कि काफी 36 और मैं मिलते हैं, but for me to understand that लहजा of भूतपूर और वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, so I started reading this book called Banaras Talkie by Satya Vyas. तो वो किताब मैंने पढ़ी तो मैं एक मेंटालिटी समझने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ के लोग किस तरीके से डेली लाइफ में रहते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं. उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट किया. तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, रीडिंग बुक्स विच वर रिलेटेड टू यूपी साइड और उधर की किस तरीके के लोग वहाँ पे अपना डेली लाइफ बिताते हैं. तो स्क्रिप्ट में तो बहुत कुछ मिल जाता है बाकी कि कैसे आपको कैरेक्टर प्रिपेयर करना है, एंड टीम बहुत अच्छी थी, तो बस इसी तरीके से कैरेक्टर बन गया. श्रद्धा मैम, आई वांटेड टू आस्क यू दिस, बहुत अभी तो फिलहाल फीमेल सेंट्रिक शोज मूवीज बन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें उतनी उनकी चर्चा नहीं हो रही फिलहाल भी, या उतना कमर्शियल सक्सेस उनको नहीं मिल रहा. सो व्हेन यू मेक अ मूवी और शो बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फीमेल सेंट्रिक थिंग्स, तो आपके दिमाग में वो चीज रहती है कहीं कि शायद इसे इतनी सक्सेस ना मिले. How do you take this entire scenario of still not female centric movies or shows not getting that much of appreciation from people? मुझे लग रहा है अभी मिल रहा है, ऐसा नहीं है. हर टाइप की ऑडियंस है और they are welcoming good storytelling. तो frankly सक्सेस या फेलियर दिमाग में नहीं आता जब आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं. उस टाइम पे दिमाग में ये आता है कि इसको मैं कैसे अच्छे से निभा पाऊंगी. सो इट्स मोर अबाउट दैट. लाइक आई सेड, सक्सेस और फेलियर बहुत बात की बात है, और मुझे नहीं लगता हम में से किसी के हाथ में है ये, क्योंकि हर शो हर फिल्म अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, और एक बार हमने बना के बाहर छोड़ दिया तो अब उसकी अपनी जर्नी है. तो आई डोंट थिंक सक्सेस और फेलियर कुछ दिमाग में आता है. पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि व्हेन यू से कि फीमेल सेंट्रिक, या जब आप एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं ऑडियंस को और वो कैसे परसीव किया जाता है, आई फील जब आप कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज हंसी मजाक में कह दें, वो बहुत अच्छे से परसीव किया जाता है, रादर देन बम्बार्डिंग इट टू एनीबडी. तो 36 और मैना में मैंने यही कोशिश की है कि कैसे मैं इसको एक हल्के फुल्के वे में कह के निकल जाऊं. तो सीन्स भी जब मैं कर रही थी तो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अगर ये एक थोड़ा सीरियस सीन है जहाँ पे मैना ने स्टैंड लिया है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट सीन शुड बी वेयर मैना इज देयर समथिंग लाइटर हैपनिंग, और जुगनी और 36 का कुछ मस्ती मजाक चल रहा है. सो आई हैव कॉन्शियसली डन दैट वेयर I have interplaced a serious scene to a funny scene to ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि हम उनको कुछ बहुत सीरियसली बताना चाह रहे हैं. और मुझे लगता है कि मैसेज तभी रिसीव होता है जब तुम हल्के फुल्के वे में बोल के निकल भी जाओ, और तब इंसान बैठ के सोचे अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहे थे. ये तीनों के लिए क्वेश्चन था. if I'm not wrong, आप तीनों फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट में साथ में आए हो, राइट? जी. हम I wanted इसी to know. मिले. I wanted to know आप तीनों का first impression about each other, about it, first impression. So Sandeepa, you will talk about Vikram and Shraddha ma'am, and वैसे ही. अच्छा. First impression.
So my impression of Vikram was ये लड़का बड़ा forward है, because I had so the first time that we ever met was on the script reading, the first script reading, and I had reached a little late for the script reading, and they had already started the reading, and it was in between, and so I quietly went and sat, and then Shraddha stopped the reading a little bit, and then each one then started introducing, because we have an ensemble cast in the series. So each one started introducing, hi, I'm Ashu and I'm playing Karmat, and I'm this and I'm playing this, and Vikram said, hi, I'm your Chhattis. So he didn't say, hi, I'm Vikram, I'm playing Chhattis. He said, hi, I'm your Chhattis. Is what was my first interaction with him. So I'm like, and that was my first impression of him. और उसके बाद मेरा पहला impression बना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। अगले दिन तक नहीं देखा। मैंने कहा it's time to break ice with ये देखती भी नहीं है। स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले तो आई कांटेक्ट से स्टार्ट होता है ना कॉन्वर्सेशन, तो आई कांटेक्ट ही नहीं हुआ 2 दिन तक तो। पर श्रद्धा मैम वाज वेरी इजी। सॉरी मैं कहाँ भूल गया? अभी पहले उनकी बात चल रही है ना, तुम फिर लाइन जंप करो। हाँ वही। So my first impression of Shraddha, I'll go a little back. Okay, so then I was supposed to meet Shraddha. I went very grudgingly to meet Shraddha, because initially when the show was offered to me, at that point I didn't want to do it. For different reasons. I mean, initially because I was shooting back to back. I had shot for 4 series back to back, and I wanted to take a break. I felt like it was getting too much. I thought I was also getting too spent. So I needed a break. So I told my team that I'm not. Let's take a month off, and let's not look at anything. And they had said yes, and then 2 days later, my team called me up and said, you know what, Hotstar is doing this show which is based on dancing, and they really want you for it. And I was like, oh God. So then somebody came in and said, the first thing that they told me was they're looking at someone to play, the character needs to be like Geet from Jab We Met. So when somebody says that to me, I to bloody run from it, because I don't want to do Kimbe apni favorite hu. I don't want to do any of those things. So I was like, dude, this doesn't seem like my space, and whatever. I don't think I want to do this. So they were like, at least go meet the director and see her, speak to her. So I was like, okay, fine, whatever. So in my head, I didn't want to do it, so I went very grudgingly to meet her. I was like, okay, I'll just meet her and then probably say no to it. But when I met her, and the first thing that it started on a funny note, because we were looking for a room. And the person's office it was didn't know where that room was, and they were looking at us to guide them where that room is. So we both, Shraddha and I both burst out laughing because we were like, this is your office, you're not asking us where that room is. So I think that was our icebreaker. And after that, the way, I think, she went on to tell me about the series and about how she's looking at it. And she spoke about the writing and all of that. And I felt she's my person. Like, I felt like I can vibe with her. She's, then I felt, okay, maybe I should not think about not doing this, but, this felt like a, sensible person who knew what she wants to do out of it. And she spoke really, she's made a lot of sense in everything that she spoke of. And it felt nice because, I've also not worked with female directors. I've been, working with a lot of male directors. And I felt that instant connect with her. And that has kind of only grown leaps and bounds ever since then. Vikram, now you so can... I've already told you about Sandeepa. Oh, no, you've not said. I have said it. You have to say from your perspective. मेरा पर्सपेक्टिव यही था ना, मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आइस विद यू बिकॉज वो आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था हमारा फॉर फर्स्ट 2 days। तो मे बी बिकॉज मैंने पहले ही अपने आप को इंट्रोड्यूस एज 36 कर दिया, आई डोंट नो। एंड देन लेटर ऑन मुझे संदीपा के लिए बस यही लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा आइस ब्रेक करना मेरे लिए, बिकॉज वो मैं गैप ही ब्रिज नहीं कर पा रहा था। जो फर्स्ट चीज होती है ना, पहले आप देखो तो सही दूसरे को, फिर बात करने जाओ, तो हम देख ही नहीं पा रहे थे। एंड बट इवेंचुअली सेकेंड डे हमारी बात हुई एंड मुझे बहुत स्वीट लगी संदीपा। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, मुझे इनके साथ काम करने में।
एंड प्लस आवर कैरेक्टर वाज आल्सो सच इनिशियली दैट बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, एंड सेट पे हमारी आई ज़्यादा ब्रेक हुई. विद श्रद्धा मैम आई स्टिल रिमेंबर फॉर फर्स्ट 2 days तो उन्होंने मास्क ही लगा रखा था जब हम रीडिंग कर रहे थे, तो मेरा फर्स्ट थॉट दिमाग में यही था कि हु इज द फेस बिहाइंड दैट मास्क. मुझे पहले तो ये जानना था. और सब ऐसे बैठते भी क्लोज थे ना, तो मैं तो बहुत डरती थी मास्क लगा के. तो वो मास्क ही नहीं उतरा 2 दिन तक तो. बट जो भी मुझे मास्क के पीछे से आवाज आ रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि शी विल बी वेरी इजी टू वर्क विद बिकॉज शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ आवर आइडियाज. शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाटएवर द पीपल वर सेइंग इन द रूम. ठीक है, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सेड इन द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ कि शी वर्क्स इन अ फैशन वेयर हमें कैमरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना काम करो, कैमरा विल फॉलो यू. So you just have to be in that space, you do your scene and the camera will follow you. I think that itself was so motivating for any actor that, you know, the first day you go to a reading and you get to hear this कि आपको कैमरे का ध्यान रखना, कैमरा आपको फॉलो करेगा और आप अपने हिसाब से करो, and if there are things which need to be told, then I'll come in. तो वो बहुत motivating था for me. तो मुझे लगा कि यार इस तरफ तो सब कुछ बहुत easy हो गया. Sandeepa ma'am, Shraddha ma'am, do you have something to say? I'm getting confused between Sandeepa ma'am and Shraddha ma'am. Yeah. The names start with मेरे लिए भी S. दोनों ही मैम है. तो The names start with S and I'm getting a little confused. see, for me, no, I'll tell you what. As a director, unfortunately, whenever you meet an actor, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कैरेक्टर आता है, इंसान बाद में आता है. तो जब मैं संदीपा से मिली तो मेरे दिमाग में मैना पहले आई. संदीपा को इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने जाना, क्योंकि एज अ डायरेक्टर तुम अपने किरदार को भी उनमें ढूंढना शुरू कर देते हो. तो इंसान तुम बाद में ढूंढते हो, पहले देखते हो मेरा किरदार मिल रहा है कि नहीं इधर. थोड़ा लालच मेरा भी होता है एज अ डायरेक्टर. तो मैंने जब मैना को देखा, फ्रैंकली जब भी आई, इन्होंने भी मास्क डाला हुआ था, पर इन्होंने फिर परफॉर्म करना शुरू किया. और मुझे याद है हमने 2 या 3 सीन्स ऑडिशन किए थे इनके साथ, तो 1-to-1 किया था मैंने, और मुझे बहुत मजा आया. मुझे लगा कि ये समझती हैं इनको, यू नो, व्हेन आई एम गिविंग हर अ थॉट, शी इज टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली, और अपना भी बहुत कुछ लाती हैं, यू नो, ऑन टेबल. तो मुझे बहुत मज़ा आया. और फिर एक हमने बोला कि भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो हम आपका एक डांस देखना चाहेंगे. तो तब संदीपा ने बोला अरे यूट्यूब पे देख लो. नहीं यूट्यूब पे नहीं देखेंगे, अब तुम आई हो तो कुछ कर दो. तो फिर संदीपा ने नाचा, और जो वो नाची है, मुझे नहीं लगता उस ऑफिस में और भी कोई कुछ कर रहा था, सब छोड़ छाड़ के संदीपा को देख रहे थे. तो मेरे लिए तो संदीपा का पहला इम्प्रेशन वॉज कि मुझे मेरी मैना मिल गई. और जहाँ तक विक्रम का सवाल है, अगेन विक्रम को एज अ पर्सन मैंने थ्रू द प्रोसेस ऑफ द शो, यू नो, ड्यूरिंग द मेकिंग, थोड़ा एज अ पर्सन मैंने जाना. और मुझे लगता है बहुत 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 ही अच्छा और सच्चा इंसान है ये. और जो ये इंसान है वो अपने आर्ट को मतलब वो लाता भी है अपने क्राफ्ट में, ये चीज़. तो विक्रम का मेरा पहला इम्प्रेशन था बहुत स्नूटी है ये. इसकी नाक हमेशा ऐसे ऊपर रहती है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं नहीं किसी के हाथ में आने वाला ऐसे. और मुझे याद है वो रीडिंग के बाद मैं गई और मैंने, यू नो, मेरी टीम बैठी थी, मैंने बोला ये सब तो ठीक है, लड़का नहीं, लड़का मुश्किल है, लड़का परेशान करने वाला है. पर उसका एकदम उल्टा हुआ, बिकॉज फिर जैसे विक्रम उसमें घुसा अपने कैरेक्टर में, और यू नो, he brings so much to the table, just like संदीपा. बहुत अपने कैरेक्टर के बारे में, और सिर्फ अपने बारे में भी नहीं, मतलब ये अपने को स्टार्स को भी इतना कंफर्टेबल करता है और उन पे भी उतनी मेहनत करता है. तो एक डायरेक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है. क्योंकि जब मैं और मेरा मेथड ये रहा है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ये रही है कि मैं खुद होकर पहले नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, पहले मैं लेना चाहूंगी, अच्छा बताओ भाई तुम क्या सोच के आए, ये सीन कैसे करोगे. तो काफ़ी सीन्स विक्रम के, मतलब छत्तीसगढ़ जुगनू के साथ में थे, तो उन्होंने
विक्रम ने इतना काम किया है, मतलब यू नो ऑन द को एक्टर आल्सो, एंड सिमिलरली विद मैना. So I think I was very very blessed to have both of them as Chhattis or Maina. Vikram, this question is to you. शादी के बाद आप पहली बार हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि इतना सडन डिसीजन क्यों था शादी का? क्या पहले से प्लानिंग की गई थी? और ये कि हाउ हैज लाइफ बीन आफ्टर गेटिंग मैरिड? कुछ चेंजेस आए? प्लानिंग तो 2020 से ही थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड चीज़ें डिले हो गई, एंड देन 2021 में फिर से कोविड आ गया. तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब कोविड तो नहीं रोक पाएगा हमें, एंड वी गॉट टुगेदर. और शादी के बाद चीज़ें तो कुछ चेंज नहीं हुई यार, बिकॉज हम लोग पहले से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. शादी के बाद एक चीज चेंज हुई है, शादी के बाद लॉकडाउन हो गया है, बेचारे बंद हो गए हैं, कहीं नहीं जा सकते. हाँ, बस शादी के बाद ये हो रहा है कि हम शादी से पहले इतना घूमे हैं कि शादी के बाद घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा है. लॉकडाउन घूम नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं जाओगे. ये तो बहुत प्राइवेट वेडिंग हुई थी. क्या कोई प्लानिंग है कि एक अच्छी प्रॉपर वेडिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली? क्या कोई प्लान किया है आगे जाकर? प्लान तो देखो यही किया था कि प्रॉपर वेडिंग ही करेंगे. वी हैड गिवन सो मेनी इनविटेशंस आल्सो. फिर उसके बाद में सबको धीरे धीरे मना करना पड़ा फोन करके कि नहीं हो पाएगा. लेटर ऑन एज थिंग्स विल गेट बेटर. तो प्लान तो है यार कि सबके साथ एक प्रॉपर फंक्शन, एक सेलिब्रेशन करें. जी, और ये भी एक पूछना चाहूंगी क्वेश्चन, फैंस आपको टीवी पर बहुत मिस कर रहे हैं. 1 साल हो गया है करीबन ये जादवा जिनका के बाद आप दिखे नहीं है. तो आर देयर एनी प्लान्स टू मेक अ कमबैक ऑन टीवी वेरी सून? डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स इन द किटी? टीवी पे ही हूँ यार, छत्तीस और मैना भी टीवी पे ही आ रहा है. और फैंस डेली सोप अभी तो ऐसा मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है. ठीक है, देयर इज वन प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑन हैंड राइट नाउ. आई एम वर्किंग ऑन इट. और बाकी और कुछ नहीं है यार. नया गड्ढा नया पानी खोदेंगे. संदीपा, आपसे ये पूछना चाहूंगी लास्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू स्टार्टेड योर जर्नी back in 2010 with a Bollywood movie, and it's been 10 years. How has the journey been for you? इतना लंबा सफर, एंड जो आपने बॉलीवुड से अगर कोई शुरुआत करता है ना, तो उसके जहन में ये चीज होती है यार मैं यहाँ तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी. एक बोलते ना, एक मुकाम लेकर चलता है एक इंसान. तो मैं ये पूछना चाहती थी, आर यू हैप्पी जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं? आर यू सैटिस्फाइड एज एन एक्टर? कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े पूरी जर्नी में? My journey is slightly different because I started off not wanting to be an actor. And the first film fell into my lap. It was not कि मैं बचपन से सोच रही थी कि मेरे को एक्टर बनना है, और फिर मैं स्ट्रगल कर रही थी और मेरे को फिल्म मिली फाइनली, और फिर अब मुझे अपना गोल अचीव करना है. It was nothing like that. In fact, it was by the time I finished my first film is when I actually realized that I enjoy acting and it's something that I want to pursue. And by the time I realized it, I had flown off to Australia to study. So, if you ask me, my actual journey has started in 2019 is when I've come back from Australia. And fortunately, the journey since then has been really, really exciting. It started off with I came back to India and I signed Abhay. And then I finished Abhay and I started Mumbai, and then I did Bisat, and then now Chhattis and Maina. So I've constantly been working on extremely interesting women characters, in the sense that it's given me an opportunity to explore myself as an actor. And I think I'm very thankful that the OTT boom happened at the correct time, that I've been in India at the right time. So I've gotten the opportunity to explore myself, through all these different kind of characters that I've had the opportunity to play. Am I happy with it? I'm happy with the fact that I'm a working actor in a pandemic situation. I know a lot of people are sitting at home and don't have work, so I'm extremely thankful and grateful for that. Am I happy with myself as an actor? I don't think so, because in the sense that I think that's something that each one of us has, right? We always, when I look at Chhattis or Maina now,
I always feel that I could have done this better and I could have, done this and I could have done that. I think that will always be, I'm always very extremely critical of my own work. But I feel like my trajectory is correct. I'm happy with that. I feel like people are appreciating the fact that I'm getting to do, I'm doing different characters and I'm critically also getting appreciated for the characters that I'm doing. So I think the direction is correct. So I'm happy with that. Thank you so much for joining with me. टाइम कम था वरना सवाल थे ज्यादा, एक गेम भी थी छोटी सी, बट टाइम बहुत कम है हाथ में, इसलिए तो गुड बाय बोलना चाहूंगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, श्रद्धा मैम, संदीपा एंड विक्रम. Hope to see you all soon and interact soon with you all. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Bye. Thank you. Bye-bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे.